بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر اپنی رحمت اور برکت بھیج۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا ہی حیات مطالعہ قرآن اکیڈمی کی جانب سے ہو رہے آن لائن مطالعہ قرآن کلاس میں آپ سبھی کا بہت بہت خیر مقدم کرتی ہوں۔ تو سامعین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا سبق نمبر 10 چل رہا ہے، یعنی کہ چیپٹر 10، اور چیپٹر 10 میں ہم کور کر رہے ہیں سورہ فرقان کی آیات 63 سے 77 تک ہم اس میں کور کر رہے ہیں۔ اور پچھلی جو کلاسز، یعنی کہ گزشتہ جو ہماری کلاسز رہی ہیں، اس میں ہم نے آیت نمبر 73 تک کمپلیٹ کر لیا ہے الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے۔ کل اس آیت یعنی کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 73 پر ہمارا مطالعہ رہا تھا، اور کل ہم نے اس آیت پر مطالعہ کروایا اور سب کی رائے جانی تھی کہ آپ لوگوں نے اس آیت پر کیا سمجھا، کیا جانا۔ تو اور انشاءاللہ آج ہم سورہ فرقان کی آیت نمبر 73 پر اپنی گفتگو کو کنکلیوڈ کر دیں گے۔ اور یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے، جو ہم نے سیکھا کہ یہ ہمیں پیغام دیتی ہے کہ یہ قرآن کو صرف سننا نہیں ہے، سننا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ جیسے کہ اس کا ترجمہ آپ لوگوں کی اسکرین کے سامنے ہے کہ جنہیں اگر ان کے رب کی آیتیں سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہتے۔ تو اس آیت کا نقطہ یہ آپ لوگوں کو دکھاتا ہے کہ قرآن کو صرف سننے والے جو ہوتے ہیں وہ ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ دو طریقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو سن کر آگے نکل جاتے ہیں گونگے اندھے بن کر، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو سن کر عمل کرتے ہیں، اندھے اور بہرے بن جاتے ہیں۔ یہاں گونگے لفظ کا ذکر نہیں ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی کلاس۔ آج کی کلاس ہم جو شروع کریں گے وہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 73 کے کنکلوژن کے ساتھ شروع کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 سے 76 یعنی کہ 74 سے 76 تک، اس کے بعد پھر ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی کلاس۔ میں گزارش کروں گی بھائی مواحد سے کہ وہ پلیز آئیں اور کلاس کا آغاز کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین حسبنا اللہ ونعم الوکیل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت کے ساتھیوں، ہمارا سورہ فرقان پر کافی ٹائم سے مطالعہ چل رہا ہے، اور الحمدللہ اس کی آیت نمبر 73 پر ہم پہنچ چکے ہیں۔ اور ہم یہاں جو پارٹ کور کر رہے ہیں وہ ہے رحمان کے بندوں کی صفات، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں، جو بندے ہونے کا حق رکھتے ہیں، ان کی کیا کیا صفات ہیں، ان کے اندر کیا کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں وہ بتا رہا ہے، یعنی مومنوں میں کیا کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ تو انہی خوبیوں میں سے ایک خوبی کا ذکر اس آیت میں بھی ہے کہ جنہیں اگر ان کے رب کی آیتیں سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خوبی کو بھی یہاں اپنے بندوں کی جو خاص خوبیاں گنوائی ہیں، ساری خوبیاں تو نہیں گنوائی ہیں یہاں پر، لیکن جو خاص خوبیاں اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں سنتے ہیں تو ان سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 72 میں ہم نے جو پڑھا تھا کہ وہ جھوٹ پر گواہ نہیں بنتے، یعنی نہ وہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں اور نہ وہ خود جھوٹ بولتے ہیں، اور کسی بیکار کی چیز سے ان کا گزر ہو جائے تو وہاں سے شریف آدمیوں کی طرح وہ گزر جاتے ہیں۔ اور اگلی بات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہی ہے وہ اپنے قرآن کے تعلق سے کہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی جائیں تو اس پر ایک مومن کا کیا رویہ ہونا چاہیے اور ایک منافق یا ایک کافر کا کیا رویہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا ہے۔ آیت جیسے کہ آپ کے سامنے، اس میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی پہلو بتایا ہے، یعنی رحمان کے بندوں کا پہلو بتا دیا، مومنوں کا پہلو بتا دیا کہ وہ یہ ہے
कि कुरान से नसीहत हासिल करते हैं उस पर अंधे और बहरे बनकर नहीं रह जाते। इसके अपोजिट आप समझ लीजिए कि जो कुरान से नसीहत हासिल नहीं करते, या जो, तो वो वैसे ही है कि जैसे उस पर अंधों की तरह या बहरों की तरह, जैसे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं या उन्होंने कुछ सुना ही नहीं, ऐसे ही वो गुजर जाते हैं। यानी मुनाफिकीन वाला और काफिरों वाला पहलू अल्लाह ताला ने यहाँ जिक्र ही नहीं किया है। सिर्फ रहमान के बंदे जो है, मोमिनों का पहलू यहाँ जिक्र क्या है कि कुरान के साथ उनका क्या रवैया होता है। तो अल्लाह ताला सबसे पहले तो ये दुआ है कि हमारा भी ये जो रवैया मोमिनों का है कुरान के साथ, ये रवैया हमारा भी अल्लाह ताला कर दे। और यही इस क्लास का मकसद है कि हम इस कुरान को समझें, इस पर अमल करें। अब इस आयत का अल्हम्दुलिल्लाह कल मुताला काफी अच्छे से किया और काफी डिटेल में हो चुका है, तो इंशाल्लाह इसके कंक्लूजन की तरफ हम चलते हैं कि इस आयत से हमें क्या और चीजें निकलती हैं। जो चीजें कल नहीं आई थी इंशाल्लाह वो भी एड ऑन यहाँ पर हो जाएंगी। तो अल्लाह ताला ने रहमान के बंदों की सिफात बताते हुए ये वो शुरुआत की है कि जिन्हें अगर उनके रब की आयतें सुनाकर नसीहत की जाती है तो वो उस पर अंधे और बहरे बनकर नहीं रह जाते। यहाँ अगर मैं अरबी के वर्ड की बात करूं कि जो अरबी में यहाँ पे वर्ड आए हैं, लम यखर्रू अलैहि सुम्मऊ व उम्याना, इसका जो लफ्जी तर्जुमा है वो है वो उन पर अंधे और बहरे बनकर नहीं गिरते। यहाँ मौलाना ने जो तर्जुमा किया है कि नहीं रह जाते, लेकिन अगर इसका लफ्ज बाई लफ्ज अगर तर्जुमा करें तो वो यही है कि वो उन पर अंधे और बहरे बनकर नहीं गिरते, यानी उन आयतों पर नहीं गिरते। अब आयतों पर वो गिरने से क्या मुराद है? आयतों पे तो कोई नहीं गिरेगा फिजिकली, तो इससे क्या मुराद है? तो यहाँ बात जो हुई है वो मुहावरतन अल्लाह ताला ने यहाँ बात की है। जैसा कि कुरान में हमें दूसरी जगह मिलता है कि अल्लाह ताला ने जिहाद के लिए एक हुक्म दिया था और उस पे भी अल्लाह ताला ने मुहावरतन वो बात कही थी। जैसे एक हुक्म था कि जिहाद का हुक्म सुनकर वो बैठे रह गए, कुरान में ही है कि जिहाद का हुक्म सुनकर वो बैठे रह गए, या हम अपनी उर्दू लैंग्वेज में बोलते हैं ना उसका, हुक्म सुनकर वो कि बैठे रह गए। इसका मतलब ये नहीं होता है कि जैसे उन्होंने जिहाद का हुक्म सुना वो खड़े थे बैठ गए, नहीं, ये नहीं होता उसका मतलब। वो बात वहां अल्लाह ताला मुहावरतन अल्लाह ताला वो बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो जिहाद का हुक्म सुनकर बैठे रह गए, यानी उन्होंने जिहाद का जैसे ही हुक्म सुना उन्होंने कोई हरकत नहीं करी, बल्कि वो उससे जाने से कासिर रह गए, यानी उन्होंने कोई अमल नहीं किया, उस पर कोई हरकत उन्होंने नहीं की। तो हरकत ना करने के मानी में अल्लाह ताला ने बैठे रहने का लफ्ज वहां यूज किया था। ऐसे ही यहाँ पर है कि अंधे और बहरे बनकर नहीं गिरते, तो यहाँ भी बात मुहावरतन है। तो अब ये आयत आपको और अच्छे से क्लियर होगी कि आयत का मतलब ये है कि जो अल्लाह ताला के फेवरेट बंदे हैं, जो रहमान के बंदे हैं, जो मोमिन हैं, वो जब अल्लाह ताला की आयतें वो सुनकर उनका जो रवैया है वो ये नहीं होता कि वो अल्लाह ताला की आयतें सुन लें और फिर भी वो टस से मस ना हो, उन पर कोई जू भी ना रहेंगे, उनमें कोई हरकत पैदा ही ना हो, बल्कि रहमान के बंदे अल्लाह ताला की आयतें सुनकर उनका गहरा असर कबूल करते हैं अपने अंदर। ये है इसका मतलब। ये बात अल्लाह ताला ने मुहावरतन कही है कि वो अंधे और बहरे बनकर नहीं गिरते, यानी अ, रहमान के बंदे ऐसे नहीं है कि उन पर अल्लाह ताला की आयतें भी तिलावत की जा रही हैं, अल्लाह ताला की आयतें भी वो सुन रहे हैं और फिर भी वो टस से मस ना हो, फिर भी उनके दिल में कोई कैफियत तारी ना हो, उनके दिल में अमल की आरजू पैदा ना हो, बल्कि रहमान के बंदे उसका गहरा असर कबूल करते हैं। और यहाँ तक कि कुरान में जो अहकाम अल्लाह ताला बयान करता है, जो हिदायत अल्लाह ताला कुरान में देता है, तो रहमान के बंदे उसकी बेहतरीन पैरवी करते हैं, वो हरकत में आ जाते हैं अल्लाह ताला की आयतें सुनकर, तो उसकी पैरवी करते हैं। और अल्लाह ताला ने जिस चीज को इंसान के ऊपर, मोमिनों के ऊपर वो फर्ज ठहराया है, तो रहमान के बंदे उस फर्ज को पूरा करते हैं, उसको अदा करते हैं। और कुरान ने जिस बुराई को बुराई बयान कर दिया, जिस बुराई को कह दिया ये बुरा काम है, तो रहमान के बंदे उस चीज से रुक जाते हैं, उस चीज की तरफ नहीं जाते। ये है इस आयत का मतलब। ये है कि बहरे बनकर वो नहीं गिरते, ये है। और अल्लाह ताला ने जिस अजाब से कुरान में मोमिनों को डराया है, तो वो उसके बारे में जब मोमिन सोचता है ना, वो उसकी सोच कर ही रूह कांप जाती है, इसलिए वो अमल करता है, कुरान पे वो अमल करता है। तो ये चीजें हैं, ये इस आयत का असल मतलब है। अब यही देखें कि हम यहाँ थोड़ा कंपैरिजन भी करें कि हम जब कुरान की आयतें सुनते हैं और सहाबा इकराम, यानी जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही थे, उन पर जो कुरान की आयतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत करते थे, कुरान का हुक्म उनके पास आया करता था, तो उनका क्या अमल हुआ करता था
اور ہمارا کیا عمل ہے. یہ جس دور کی بات چل رہی ہے وہ وہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ رحمان کے بندوں کو ایک معاشرے میں، جو کہ مشرکین مکہ کا ایک معاشرہ تھا، وہ کافر تھے سب کے سب، وہاں جو نمایاں جو لوگ تھے ان کے اندر جو خوبیاں تھیں اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے، یہ ہے وہ لوگ، یہ ہے وہ مومن لوگ، ان کے اندر یہی خوبیاں ہیں، آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں. تو وہاں پر ان کے اندر ایک خوبی یہ بتائی گئی ہے کہ جب وہ قرآن کی آیتیں آتی ہیں تو پورے معاشرے کا کیا عمل تھا، ان کو سننا ہی نہیں ہے، ان کی طرف جانے ہی نہیں ہے. لیکن مومنوں کا کیا عمل تھا، آپ یہ دیکھ لیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا حکم آنے کی دیر تھی اور ان کا عمل اس پہ اسٹارٹ ہو جایا کرتا تھا. یہ عمل تھا. تو صحابہ اکرام جب قرآن کو سنتے تھے تو اس پر عمل کی فکر کرتے تھے کہ اس کے حکم پر ہمیں فالو بھی کرنا ہے. لیکن وہیں آج ہم اپنا حال دیکھ لیں، ہم جب قرآن کی آیت سنتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کو سامنے والے پر کیسے چسپا کریں کہ ہاں اس آیت کی کیٹیگری میں تو بہن تو آ رہی ہے، تو پردہ نہیں کرتی، تو نماز نہیں پڑھتی. ہم دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں. لیکن صحابہ اکرام دوسرے کو نہیں، وہ خود کو کی تولا کرتے تھے کہ میں کتنے پانی میں ہوں. وہ اپنے گریبان میں جھانکتے تھے، وہ دوسرے کے گریبان میں نہیں جھانکا کرتے تھے. تو یہ چیز تھی. میں کچھ اگزامپل میں نے آپ کو سورہ تغابن جب ہماری چل رہی تھی وہاں میں نے آیتوں کے ذریعے بتایا تھا کہ جب صحابہ اکرام قرآن سنتے تھے تو ان کا کیا عمل ہوا کرتا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں نازل کری سورہ تغابن میں، اس کے علاوہ اور بھی سورہ بقرہ میں بھی، کہ کون ہے جو تم میں سے اللہ تعالیٰ کو بہترین وہ قرض دے، یعنی قرض حسنہ دے. جب یہ آیتیں نازل ہوئی تھی تو ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. یہ دیکھیں ان کا طرز عمل کیا ہوتا تھا. وہ آئے، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ مومنوں سے قرض کی ڈیمانڈ کی ہے، کیا اللہ تعالیٰ بھی قرض مانگتا ہے؟ اس کو بھی ضرورت ہے پیسوں کی، اور ہم اللہ تعالیٰ کو قرض کیسے دیں گے؟ وہ صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے کوشچن رکھا. کیونکہ جب انہوں نے قرآن کی آیت سنی تو وہ اندھے اور بہرے بن کر نہیں گرے، اس پر سے سرسری طور پر نہیں گزر گئے. انہیں یہ فکر ہو گئی کہ چلیں اس پہ عمل بھی کرنا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں بالکل اللہ تعالیٰ قرض مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کیسے قرض دے سکتے ہیں؟ اس کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا پیسہ لگانا، یہ اللہ تعالیٰ کو قرض ہے. یہ دین کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. یہ دنیا میں غالب ہونا چاہیے، یہ مشن کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے بھیجا ہے، ہم سب کا ہے. لیکن یہ دین تو اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کو غالب کرنے کے لیے جو پیسہ آپ لگائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کو بطور قرض ہے. جو مستحقین آپ کے آس پاس ہیں، جو غریب آپ کے آس پاس ہیں، آپ ان کو دیتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو آپ بطور قرض دے رہے ہیں. تو صحابہ اکرام وہ آئے تھے، ابو دہدہ صحابی رضی اللہ عنہ ان کا نام تھا، ابو دہدہ. تو وہ آئے تھے اور انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا. تو انہوں نے کہا کہ کیا واقعی میں اللہ تعالیٰ قرض چاہتا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں. تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ہاتھ مانگا اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں رکھ کر وہ کہہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا باغ ہے اور آپ گواہ رہیے، اللہ تعالیٰ کو میں نے یہ قرض کے طور پہ دے دیا، پورا باغ دے دیا. اس باغ میں ان کا اپنا گھر بھی تھا، پورا باغ دے دیا. 600 کھجور کے پیڑ تھے اس میں. کتنا کتنے بڑے بزنس مین تھے وہ، کتنا ان کا سرمایہ تھا اس باغ میں، کتنا پیسہ ارن کرتے ہوں گے اس سے وہ. لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا. اللہ تعالیٰ قرض مانگتا ہے، پورا باغ دے دیا. اور یہ دیکھیں پھر بات کا رویہ کیا ہے. اپنے گھر گئے اور گھر میں انٹر نہیں کر رہے کیونکہ انہیں پتا تھا یہ باغ میں نے اللہ تعالیٰ کو مطلب کہ وہ قرض کے طور پہ دے دیا. تو باہر سے یہ آواز لگائی اپنی بیوی کو، باہر سے یہ آواز لگائی تو، اور باہر سے ہی بتا دیا، گھر میں انٹر نہیں ہوئے، باہر سے ہی بتا دیا کہ یہ باغ میں نے اللہ تعالیٰ کو بطور قرض دے دیا ہے، یہ ہمارا نہیں رہا. تو بیوی کا رپلائی تھا کہ بہترین سودا کر کے آئے ہو آپ، بہترین سودا کر کے آئے ہو، بہترین قیمت لے کر آئے ہو اس چیز کی، اللہ تعالیٰ دے گا اس کا، اللہ تعالیٰ کو دیا ہے قرض. تو وہاں سے وہ اس باغ کو انہوں نے خالی کر دیا اور دوسری جگہ ان کی اور بھی پراپرٹی ہوگی وہاں وہ جا کر رہنے لگے. یعنی وہ باغ پوری طرح اللہ تعالیٰ کو انہوں نے وقف کر دیا تھا. تو اس واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ اس لیے بتایا ہے کہ قرآن کی آیتیں سن کر ان کا کیا عمل ہوا کرتا تھا، ان کا کیا رویہ ہوا کرتا تھا. انہیں عمل کی فکر ہوتی تھی. قرآن میں سورہ تغابن میں وہ آیتیں ہیں کہ سورہ تغابن میں ہے، سورہ بقرہ میں ہے، اور قرآن میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 102 ہے جو کہ تقوی کے معاملے میں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ کا تقوی، سورہ آل عمران آیت نمبر 102 جو کہ تقوی کے اوپر سب سے گاڑی آیت ہے.
اللہ ताला से ऐसा डरो जैसा कि डरने का हक है, यानी इतना तकवा इख्तियार करो जैसा कि उससे तकवा इख्तियार करने का हक है। तो सहाबा इकराम ये आयत सुनकर डर गए कि अल्लाह ताला का हक कौन अदा कर सकता है, ये तो कोई कर ही नहीं सकता। फिर अल्लाह ताला ने सूरह तगाबून में उन्हें राहत दी, इतना तकवा इख्तियार करो जितनी तुम्हें इस्तात है, अपनी इस्तात के मुताबिक। तो वहां सहाबा इकराम कुरान की आयतें सुनकर हिल जाया करते थे कि हम कैसे अदा करेंगे अल्लाह के रसूल, अल्लाह का हक कैसे अदा करेंगे। सूरह आल इमरान 100 आयत नंबर 102 में अल्लाह ताला ने क्या फरमा दिया, अल्लाह ताला का ऐसा तकवा इख्तियार करो जैसा कि उसका हक है, हक तो अदा हमसे नहीं होगा। तो फिर सूरह तगाबुन में अल्लाह ताला ने उन्हें छूट दी, वो सहाबा इकराम को, कि मैं डिमांड तो आपसे वही कर रहा हूँ, लेकिन अपनी इस्तात के मुताबिक। अल्लाह ताला ने छूट दे दी कि इतना तो इख्तियार करो तकवा, इतना ताला तो अल्लाह से डरो कि जितनी तुम में इस्तात है, जितनी तुम ताकत रखते हो। सूरह बकरा में आयत नंबर 286 में अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह ताला किसी नफ्स पे उसकी वुसअत, उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। तो ये देखें सहाबा इकराम का कुरान सुनना, और उसके बाद उनका क्या रवैया हुआ करता था, और आज हमारा क्या रवैया हुआ करता है। हम खुद को तोले जांचे परखें, हम उस दौर में चले जाएं कि वहां उस दौर में भी तीन कैटेगरी के लोग थे, एक मुसलमान जो पक्के मोमिन थे, एक मुनाफिकीन जो ऊपर से मुसलमान थे अंदर से मुनाफिक थे, तीसरे कि काफिर। उन काफिर में सब आ गए मुशरिक, अहले किताब, यहूदी, ईसाई वगैरह सब आ गए काफिर। तो तीन कैटेगरी थी। वहां सिर्फ अल्लाह ताला ने एक कैटेगरी का जिक्र किया है कि जो मुसलमान थे उनका क्या रवैया था। उनका रवैया ये था, दो मिसालों से मैंने आपको बताया, मिसालें मैं काफी दे सकता हूँ सहाबा इकराम की। जब मदीना में शराब का हुक्म आया कि ये हराम कर दी गई है, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत कर गए थे, वो तब पूरी तरह हराम का उसका हुक्म आया। तो सहाबा इकराम ने मदीना की गलियों में ना अपनी शराब के ड्रम बहा दिए। जो शराब बेचा करते थे उन्होंने भी, ये था उनका कुरान सुनकर उनका अमल। हम होते कि ये शराब बन गई और ये शराब मुझे बेचनी है, चलो इसके बाद तौबा करके, ये हुक्म तो आज ही नाजिल हुआ है, एक दो दिन का मैं अपना बिजनेस का लॉस क्यों करूं, मैं इसको बेच के मैं फिर नहीं बनाऊंगा, फिर अमल कर लूंगा इस आयत पे। नहीं, नुकसान होता है तो हुआ करे, अल्लाह का हुक्म आ गया, इससे बढ़कर कोई चीज नहीं। एक सहाबी मस्जिद नबी के सामने से गुजर रहे थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, और खुतबे में उन्होंने एक शख्स से कहा था जो कि मस्जिद के अंदर ही थे, उनसे कहा था कि बैठ जाइए। वो आवाज मस्जिद के बाहर जो शख्स था उसने सुनी, वो वहीं बैठ गया। ये था उनका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनकर अमल करना, कुरान का हुक्म सुनकर अमल करना। ये था उनका रवैया। वो मस्जिद के बाहर था सर, लेकिन उसके कानों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पड़ी कि बैठ जाइए। तो उसने चूं चरा नहीं कि मुझसे नहीं कहा होगा, कोई होगा या वो होगा, नहीं, वो बैठ गया, अल्लाह के रसूल का हुक्म आ गया, दैट्स इट, खत्म कहानी। ये चीजें हैं, हमें इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमारे सामने वाज़ेह हुक्म है, शराब हराम है, फिर भी मुसलमान पी रहा है। हमारे सामने वाज़ेह हुक्म है, नमाज छोड़ना कुफ्र है, ईमान और कुफ्र के दरमियान जो बाउंड्रीज है वो नमाज की है, जिसने नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया, हम फिर भी नमाज छोड़ रहे हैं। आप देख लीजिए मुसलमानों की अक्सरियत, वो कितने लोग मिलते हैं आपको सफ में, एक दो सफ। आप फजर में जाके देख लें, मौजिन साहब होंगे और दो दो इस साइड खड़े होंगे, दो उस साइड, उसमें से भी तीन बुजुर्ग, एक अल्लाह ताला का वो नौजवान जिसको अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी है, या एक आध व्हील चेयर पे हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वो, मतलब कि मिलेंगे आपको। तो ये हुक्म है ना हमारे लिए, ये तो फर्ज चीज है। तो ये देखें कि कितना अंतर है हमारा कुरान सुनना और सहाबा इकराम का कुरान सुनने में। उन्हें अमल की फिक्र हो सकती थी। मैं ढेरों मिसालें दे सकता हूँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से कि क्या सहाबा इकराम का रवैया हुआ करता था। एक सहाबी आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और चले गए, और वो अपनी जिंदगी भर ना अपने गले का जो कॉलर का बटन है और उससे नीचे का एक बटन खोल कर रखा करते थे पूरी जिंदगी भर तक। उन्होंने बटन हमेशा उसका खोले रखा। बाद में किसी ने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो, तो उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा करते हुए देखा। यानी वो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले होंगे तो उनका एक बटन खुला हुआ होगा। तो यानी देखें, उन्हें पता है कि कुरान ने हुक्म दिया है पैरवी करो रसूल की,
اگر تم اس سے محبت کرتے ہو تو اس رسول کی اطاعت کرو، پیروی کرو۔ تو انہیں قرآن کے اس آیت پہ عمل کرنا تھا، تو وہ اپنی زندگی بھر تک بٹن کھول کر اور انہوں نے رکھا۔ میں ڈھیروں مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن بات ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ ہمیں بھی قرآن جب ہم پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پہ تدبر کریں، تو اس کو عمل میں ہمیں لانا چاہیے۔ قرآن کی آیتیں سن کر ہمیں اندھے اور بہرے بن کر نہیں گزر جانا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو بات کہہ دی ہے، اس پر اب عمل ہم کیسے کریں گے۔ وہیں سورہ انفال میں آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ جب قرآن کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، ان کا کیا رویہ ہوتا ہے۔ جو صحابہ کرام کا جو رویہ تھا نا، اس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال آیت نمبر 2 میں کھینچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ سچے ایمان والے تو وہ لوگ ہیں، یعنی سچے وہ ہیں، باقی سب جھوٹے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، اگر ہمارے ساتھ یہ صفات جو اس آیت میں بتائی جائیں گی، اگر ہمارے ساتھ یہ کیفیت طاری نہیں ہو رہی، تو ہم جھوٹے ایمان والے ہیں۔ سچے ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر کانپ اٹھتے ہیں۔ ذکر اللہ جن کے دل اللہ تعالیٰ کا ذکر سن کر کانپ اٹھتے ہیں۔ ذکر کس کو کہا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی نگہبان ہیں، یعنی قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کہا ہے کہ جن کا دل اللہ کا ذکر سن کر کانپ اٹھتا، وہ کانپ اٹھتے ہیں، وہ ہیں سچے ایمان والے لوگ، وہ ہیں سچے ایمان والے لوگ، باقی سب جھوٹے ہیں۔ اگر ہمارا دل اللہ تعالیٰ کا ذکر سن کر، اللہ تعالیٰ کی آیتیں سن کر ہمارا دل نہیں کانپ رہا، ہمارے اندر کوئی حرکت پیدا نہیں ہو رہی، ہمارا ایمان کا دعویٰ جھوٹا ہے، ہمارا ایمان کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ تو سچے ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کا ذکر سن کر ان کا جو دل ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر سن کر کانپ اٹھتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتیں، قرآن کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ 3 خوبیاں ہیں ان کے اندر جو اس آیت میں بتائی ہیں۔ اللہ کا ذکر سنتے ہی ان کے دل کانپ اٹھے۔ سیکنڈ، اللہ تعالیٰ کی آیتیں جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے ان آیتوں پہ، کم نہیں ہوتا، اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ ساتھ توکل بھی بڑھتا ہے، ایمان اور توکل بڑھتا ہے۔ ذکر ان کے جو دل ہیں وہ ذکر سن کر وہ نرم ہو جاتے ہیں، وہ کانپ اٹھتے ہیں کہ اس آیت پہ میں کیسے عمل کروں گا، میں جہنم کے عذاب سے کیسے بچوں گا۔ تو یہ ایمان والوں کا رویہ ہے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ کیفیت ہمارے ساتھ طاری نہیں ہو رہی ہے، تو ہمیں اپنے ایمان کی کھیر منانے کی ضرورت ہے۔ ہم جھوٹے ایمان والے ہیں اگر یہ کیفیت ہمارے اندر یہ نہیں کی سما رہی ہے۔ اور منافقین کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ جو کافر ہیں ان کا اللہ تعالیٰ کی آیتیں سن کر کیا رویہ ہوتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان آیت نمبر 7 میں اس کو بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اسے جب ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ گھمنڈ کے ساتھ اس طرح منہ پھیر لیتا ہے کہ مانو اس نے سنا ہی نہیں۔ وہ گھمنڈ کے ساتھ اس طرح منہ پھیر لیتا ہے کہ مانو اس نے سنا ہی نہیں، مانو کہ اس کے کان بہرے ہیں، یہ جو کان ہے نا وہ بہرے ہیں، ایسا۔ اچھا، خوشخبری سنا دو اسے ایک دردناک عذاب کی، اللہ تعالیٰ نے کہا۔ تو یہ رویہ ہے کہ گھمنڈ کے ساتھ اس طرح منہ پھیر لیتے ہیں منافقین یا کافر کہ جیسے انہوں نے قرآن کا حکم سنا ہی نہیں، مانو کہ ان کے کان بہرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں اچھا، وہ ترجمے میں یہ ورڈ لکھا ہوا ہے اچھا، وہ خوشخبری سنا دو انہیں دردناک عذاب کی۔ یہ جو یہ رویہ اختیار کر رہے ہیں انہیں خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی، جہنم۔ اب دیکھیں کیا ہمارا ڈٹو یہ رویہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آیتیں سنی، احکام سنے، اور ہم اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اس پر عمل کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ یہی تو ہمارا رویہ ہے۔ آپ دیکھ لیجیے ہماری اکثریت کا کیا حال، یہی ہے رویہ۔ قرآن سننے کا ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس، قرآن سننے کا ٹائم نہیں ہے، اس پر عمل تو بات دور کی رہی، قرآن کو سمجھنے کا ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ تو منافقین سے بھی برا رویہ ہمارا ہوتا جا رہا ہے۔ منافقین کم سے کم قرآن سنتے تھے پھر اس سے منہ پھیرتے تھے، ہم قرآن سننے کے لیے ہی تیار نہیں ہیں۔
تو ये हमें खुद पर हमें देखना चाहिए कि अगर हम ईमान वाले हैं तो अल्लाह ताला की आयतें सुनकर हमारे अंदर वो हरकत पैदा होनी चाहिए जो सहाबा किराम के अंदर हुआ करती थी। हमारे दिल कांप उठ जाने चाहिए, हमारा ईमान उन आयतों पे बढ़ जाना चाहिए, और हमारा तवक्कुल, हमारा भरोसा सिर्फ अल्लाह ताला की जात पर होना चाहिए। अब इस आयत से एक बात और निकल कर आई कि अल्लाह ताला ने यहाँ मोमिनों की सिफात बताते हुए एक चीज और की थी कि मोमिन अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हैं, नसीहत हासिल करते हैं, अक्ल लगाते हैं, अंधे और बहरे बनकर नहीं रह जाते। अंधे और बहरे बनकर इससे क्या मुराद है? यानी वो ब्लाइंड फॉलोवर नहीं है, अंधविश्वासी नहीं है, जो अल्लाह ताला की आयत आई है उस पर गौर व फिक्र भी करते हैं, तदब्बर भी करते हैं, उस पर अपनी अक्ल भी लगाते हैं और उसके बेहतरीन पहलू पर अमल भी करते हैं। अक्ल का इस्तेमाल भी करता है मोमिन, अक्ल का इस्तेमाल भी करता है। सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, ब्लाइंड फेथ नहीं है, बल्कि हर आयत पे मोमिन अक्ल का भी इस्तेमाल करता है, अपनी अक्ल का इस्तेमाल भी करता है। लेकिन हम देखेंगे कि अक्सर आपने जो रिलीजियस जो लोग होते हैं, वो चाहे इस्लाम के हों या इस्लाम के अलावा वो कोई और भी मजहब हो, यानी इस्लाम के जो जो मजहबी लोग होते हैं, जो रिवायती लोग होते हैं, वो भी अक्सर आपने उनके मुंह से एक जुमला अक्सर आपने सुना होगा कि धर्म के मामले में अक्ल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्या? धर्म के मामले में अक्ल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और कुछ मुसलमान भी अक्सर ये जुमला बोलते हैं कि दीन के मामले में अक्ल अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अरे अक्ल का इस्तेमाल करोगे तो गुमराह हो जाओगे, गुमराह हो जाओगे। ये जुमले बोले जाते हैं, हम सुनते हैं, लेकिन अल्लाह ताला कुरान में मोमिनों की खूबियों में ये बात लाया है कि वो अंधे और बहरे बनकर नहीं रह जाते, वो अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हैं, यानी इन आंखों से देखते हैं। जो ये सेंसेस है ना, आंख, कान, जो पांच इंसान के सेंसेस होते हैं, ठीक है, जिनसे वो चीजों का वो पता लगाता है, तो वो इन सेंसेस का यूज करते, वो करके अपने दिमाग में प्रोसेस करते हैं, अपनी अक्ल उसमें लगाते हैं। अच्छा, अक्ल लगाने के भी दो पहलू हैं। एक तो अक्ल का सही इस्तेमाल है कि अक्ल को सही दायरे में उसको पता हो मेरी क्या क्या लिमिटेशन है और इस चीज के क्या उसूल है, यानी जिस चीज पे अक्ल लगाई जा रही है उन चीजों के उसूल उसको पता हो। तो एक तो अक्ल का सही इस्तेमाल है, और दूसरा अक्ल का इस्तेमाल है गलत, यानी अगर इंसान गलत तरीके से अक्ल लगा दे, यानी उसका अक्ल लगाने का तरीका गलत हो जाए, तो वो नुकसान उठा बैठता है। तो हमें क्या करना है कि सही तरीके से अक्ल का इस्तेमाल करना है, गलत तरीके से नहीं करना है। और इस बिना पे हम ये तो नहीं कह सकते कि हमें दीन में अक्ल नहीं लगानी है, अक्ल का इस्तेमाल करना गलत है, नहीं, दीन में अक्ल लगानी है, क्योंकि कुरान ही एक इकलौती ऐसी किताब है, कुरान इकलौती ऐसी किताब है कि जिसने अक्ल के इस्तेमाल पर बेपनाह जोर दिया है। तमाम अल्लाह ताला ने इन आयतों को हैमर किया है। इतनी आयतें हैं कुरान में अक्ल के इस्तेमाल पे कि अगर उनको कलेक्ट कर दिया जाए तो एक अलग से एक बुक मुरतब हो जाए। जगह जगह कुरान की आयतें मौजूद हैं। कुछ आयतें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जहां अल्लाह ताला ने अक्ल के इस्तेमाल पर हैमर किया है रहमान के बंदों को, मोमिनों को, ताकि वो अक्ल का इस्तेमाल करें, अक्ल को साइड में ना रखें। सूरह बकरा आयत नंबर 269 है सूरह बकरा की, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि जिसको चाहता है हिकमत अता करता है अल्लाह ताला, और जिसको हिकमत मिली उसे हकीकत में बड़ी दौलत मिल गई। इन बातों से सिर्फ वही लोग सीख लेते हैं जो अक्लमंद है। यानी अल्लाह ताला ने कुरान की आयत के बाद एक बात कही है कि इन बातों से, जो अल्लाह ताला की बातें हैं, उनसे वही लोग सीख लेते हैं जो अक्लमंद हैं, जो अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग इन बातों से सीख लेते हैं। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 190 जो कि हम पढ़कर आए हैं, उसमें भी अल्लाह ताला ने कहा था कि आसमान और जमीन की पैदाइश में, रात और दिन के बारी बारी आने में अक्ल वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं, होश रखने वालों के लिए, अक्ल वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं इस कायनात में। कायनात में निशानियां किसके लिए है? अक्ल वालों के लिए, जो अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हैं। हूद अलैहिस्सलाम और जितने भी अंबिया किराम हैं, वो जब अपनी कौम को मुखातब करते हैं तो उन्होंने भी एक जुमले को साथ साथ ऐड किया है। हूद अलैहिस्सलाम ने सूरह हूद में आयत नंबर 51 में अल्लाह ताला ने हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम के भाइयों, इस काम पर, यानी जो ये तबलीग मैं आपको कर रहा हूँ, जो ये रिसालत की जिम्मेदारी का फरीजा मैं अंजाम दे रहा हूँ,
जो अल्लाह ताला का पैगाम आप तक पहुंचा रहा हूँ, मैं इस काम पर तुमसे कोई बदला नहीं मांगता, ना कोई बदला चाहता हूँ। मेरा बदला तो उसके जिम्मे है, मेरा बदला उसके जिम्मे है जिसने मुझे पैदा किया है। क्या तुम अक्ल से जरा भी काम नहीं लेते? तो हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को उकसाया है कि अक्ल से जरा भी काम नहीं लेते, अक्ल नहीं लगाते। तो ईमान वालों का काम यह है, वो अक्ल का भी इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ताला की आयतों पर अंधे और बहरे बनकर नहीं रह जाते, नहीं गिर जाते, ब्लाइंड फेथ नहीं इख्तियार करते, अक्ल भी लगाते हैं। सूरह राद आयत नंबर 19 में भी अल्लाह ताला ने कहा कि भला ये कैसे हो सकता है कि वो आदमी जो तुम्हारे रब की इस किताब को यानी कुरान को जो उसने तुम पर उतारी है हक जानता है, और वो आदमी जो इस हकीकत की तरफ से अंधा है, यानी जो इसको नहीं जानता, इस हकीकत कुरान की तरफ से वो अंधा है, दोनों बराबर हो जाएं। अल्लाह ताला ने कहा क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? एक वो आदमी जो इस किताब को हक जानता है, कुरान को, एक वो आदमी जो इसकी तरफ से अंधा है, क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगे? नहीं ना। तो फिर अल्लाह ताला ने कहा इस आयत में, नसीहत तो अक्लमंद लोग ही कबूल किया करते हैं। यानी नसीहत इस आयत में भी है, जिन आयतें सुनाकर नसीहत की जाती है तो वो उस पर अंधे बहरे बनकर नहीं रह जाते। इसमें भी है कि नसीहत तो अक्लमंद लोग ही कबूल करते हैं अल्लाह ताला की आयतों से। अक्लमंद लोग, इंटेलिजेंट, तो अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें इंटेलेक्चुअल भी आप कह सकते हैं। उसके बाद सूरह इब्राहिम आयत नंबर 52 में भी अल्लाह ताला ने कहा कि ये एक पैगाम है, यानी ये जो कुरान है ये एक पैगाम है सब इंसानों के लिए, सिर्फ एक कौम के लिए नहीं है, सब इंसानों के लिए। और ये भेजा गया है इसलिए कि उनको इसके जरिए से वो खबरदार कर दिया जाए, उन्हें आगाह कर दिया जाए, उन्हें बता दिया जाए कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है और यहाँ से जाने के बाद आपको करना क्या है, ताकि इसके जरिए से उन्हें खबरदार कर दिया जाए और वो जान ले कि हकीकत में अल्लाह बस एक ही है, और जो अक्ल रखते हैं वो होश में आ जाएं। इस आयतों के जरिए उन्हें खबरदार कर दिया जाए, और जो अक्ल वाले हैं ना वो होश में आ जाएं, जिनकी अक्ल सही है, जो अक्ल का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा सूरह स्वाद में भी आयत नंबर 29 में भी अल्लाह ताला ने इसको फरमाया, ये एक बड़ी बरकत वाली किताब है कुरान, ये एक बड़ी बरकत वाली किताब है जो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तुम्हारी तरफ उतारी है, ताकि ये लोग इसकी आयतों पर गौर करें। ताकि ये लोग, कुरान क्यों उतारा? कुरान के उतारे जाने का मकसद अल्लाह ताला ने इस आयत में बता दिया, ताकि ये लोग इसकी आयतों पर गौर करें और अक्ल और समझ रखने वाले इससे सबक लें। तो अल्लाह ताला ने तो कुरान के उतारे जाने का मकसद ये बता दिया कि इसकी आयतों पर गौर करना है, और जो अक्ल और समझ रखने वाले लोग हैं ना इससे सबक हासिल करें। तो सबक कौन हासिल करेंगे? जो अक्ल रखते हैं। अब ये जुमला इस्लाम के मानने वाले की तरफ से जब सुना जाता है कि दीन में अक्ल का इस्तेमाल नहीं है, तो ये तो कुरान के खिलाफ उनकी बात जा रही है। कौन कह रहा है अक्ल का इस्तेमाल नहीं है कुरान में? अक्ल का इस्तेमाल है, सही तरीके से अक्ल का इस्तेमाल करेंगे आप, गलत तरीके से नहीं करेंगे। अक्ल लगाएं, लेकिन अक्ल का इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे। और कुरान तो अल्लाह ताला ने इसको बता दिया है कि तुम्हारी तरफ इसलिए भेजी गई है ताकि तुम इसकी आयतों पर गौर व फिक्र करो, तदब्बुर करो, तफक्कुर करो, और अक्ल और समझ, जो लोग भी अक्ल और समझ रखने वाले हैं वो इससे सबक हासिल लेंगे। उसके अलावा सूरतुल सूरह नंबर 39 है और उसकी आयत नंबर 9 है, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या इस आदमी का रवैया बेहतर है या उस आदमी का? दो आदमियों का अल्लाह ताला कंपेरिजन यहाँ कर रहे हैं। क्या इस आदमी का रवैया बेहतर है या उस आदमी का जो हुक्म मानने वाला है? एक आदमी वो है जो अल्लाह ताला का हुक्म मानने वाला है, रात की घड़ियों में खड़ा रहता है, अल्लाह ताला की इबादत करता है और सजदे करता है, आखिरत से डरता है और अपने रब की रहमत से उम्मीद लगाता है। एक तो ये इंसान है जो अल्लाह ताला का हुक्म भी मानता है, रात की घड़ियों में अल्लाह ताला के सामने खड़ा रहता है, सजदे करता है और आखिरत से डरता भी है, और अपनी रब की रहमत की उम्मीद भी वो लगाता है कि अल्लाह ताला मुझे माफ करेगा, अल्लाह ताला मुझे जन्नत अदा करेगा। इनसे पूछो, क्या जानने वाले और ना जानने वाले दोनों कभी बराबर हुआ करते हैं? क्वेश्चन मार्क। अल्लाह ताला कह रहे हैं क्या जानने वाला जो इल्म रखने वाला है और जो इल्म ना रखने वाले हैं, क्या कभी दोनों बराबर हुआ करते हैं? क्या दोनों को बराबर देखा है आपने?
नसीहत तो अक्ल रखने वाले लोग ही कबूल करते हैं। कितनी वाज़ेह आयतें हैं, नसीहत तो अक्ल रखने वाले लोग ही कबूल करते हैं। तो ये देखें, इतनी आयतें मैंने आपके सामने रखी हैं, इससे और ज्यादा आयतें मैं रख सकता हूँ जिसमें अल्लाह ताला ने बार बार कहा है कि अक्ल का इस्तेमाल करो, अक्ल का इस्तेमाल करो। और इस आयत से भी यही बात निकल रही है कि अक्ल का इस्तेमाल करें, अंधे बहरे बनकर नहीं गिर जाए, ब्लाइंड फॉलोवर नहीं बनना है, ब्लाइंड फेथ नहीं इख्तियार करना है, तो अक्ल का इस्तेमाल करना है। ये तो अक्ल के इस्तेमाल पे मैंने आपको आयतें दी हैं, लेकिन कुरान में अल्लाह ताला ने वो भी आयतें नाजिल करी हैं कि जो लोग अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते उनको अल्लाह ताला ने क्या कहा, जरा आप वो भी देखें। नंबर एक बात तो अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला उन पर गंदगी डाल देता है, जो लोग अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते, यानी उन पर गंदगी अल्लाह ताला खुद डालता है। सूरह यूनुस आयत नंबर 100 है, सूरह यूनुस की आयत नंबर 100 है, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कोई जानदार, यानी जितने भी जिंदा मखलूक हैं अल्लाह ताला की, कोई जानदार अल्लाह की इजाजत के बिना ईमान नहीं ला सकता। और अल्लाह का तरीका ये है, जो अक्ल से काम नहीं लेते वो उन पर गंदगी डाल देता है। जो अक्ल से काम नहीं लेते अल्लाह ताला उस पर गंदगी डाल देता है। और अल्लाह ताला ने इससे पहले कहा कि कोई जानदार अल्लाह की इजाजत के बिना ईमान नहीं ला सकता। अब आयत को यहीं छोड़ दिया जाता तो लोग कह देते भाई अल्लाह की इजाजत नहीं है इसलिए हम ईमान नहीं ला रहे। यही कहते ना, अल्लाह ने इजाजत नहीं दी, अल्लाह ने तो खुद कहा कि कोई जानदार अल्लाह की इजाजत के बिना ईमान नहीं ला सकता। तो अल्लाह ने आपको इजाजत दे दी, हमें दी नहीं, तो हमारी क्या गलती, हमें क्यों जहन्नुम। तो फिर अल्लाह ताला ने उसके बाद में उसका रीजन भी बता दिया कि अल्लाह इजाजत किसको देता है, कि कोई जानदार अल्लाह की इजाजत के बिना ईमान नहीं ला सकता। और अल्लाह का तरीका यह है, अल्लाह ताला की सुन्नत यह है कि जो लोग अक्ल से काम नहीं लेते वो उन पर गंदगी डाल देता है, यानी अल्लाह ताला उनको ईमान की तौफीक नहीं देता जो अक्ल से काम नहीं लेते, उन पर गंदगी डाल देता है। गंदगी डाल देता है इसका मतलब ये है कि उन्हें अल्लाह ताला बुराइयों में डूबने के लिए छोड़ देता है, उन्हें कुफ्र की हालत में ही छोड़ देता है जो अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते। देखें कितना अल्लाह ताला ने इस चीज को यहाँ पे वाज़ेह तौर पर कहा है कि अक्ल का इस्तेमाल इंसानों को करना है। और कुरान में एक जगह तो ऐसी है जहां ईमान वालों को अक्ल वाला कहकर मुखातिब अल्लाह ताला ने कर दिया, कि ईमान वाला तो होता ही अक्ल वाला है, वो होता ही अक्ल वाला है। वो आपको मिलेगी सूरह तलाक की आयत नंबर 10, आप जब पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला ने कहा अल्लाह ने आखिरत में उनके लिए सख्त अजाब मुहैया कर रखा है, यानी अल्लाह के नाफरमानों के लिए। तो अल्लाह से डरो ए अक्ल वालो, तो अल्लाह से डरो ए अक्ल वाले लोगों जो ईमान लाए हो। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने साफ कहा ए अक्ल वालो, जो लोग ईमान लाए हो, जो ईमान लाए हो तुम अक्ल वाले हो, तुमने बेहतरीन फैसला किया है, तुमने अपनी अक्ल का सही इस्तेमाल किया है, अल्लाह ने तुम्हारी तरफ एक नसीहत नाजिल कर दी। तो कुरान को अल्लाह ताला ने यहाँ पर फिर नसीहत कहा, तो अल्लाह ताला ने ईमान वालों अक्ल वालों को ईमान वाला कहकर मुखातब किया है कि ईमान वाले ही असल में अक्ल वाले लोग हैं। और जो लोग अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते ना, कुरान की दो आयतें मैं आपके सामने और रखना चाहूंगा कि अल्लाह ताला ने उनको क्या कहा है। सबसे बदतरीन उनको कहा है, यानी जो जानवर होते हैं ना, जानवर, जानवरों से भी बदतर वो लोग हैं जो अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते। सूरह अराफ आयत नंबर 179 में अल्लाह ताला ने कहा और ये हकीकत है कि बहुत से जिन और इंसान ऐसे हैं जिनको हमने वो जहन्नुम के लिए ही पैदा किया है। उनके पास दिल है, जो जहन्नुम के लिए पैदा हुए हैं जिन्नों में से और इंसानों में से, उनकी खूबियां अल्लाह ताला बता रहा है कि उनके पास दिल है मगर वो उनसे सोचते नहीं, उनके पास आंखें हैं मगर वो उनसे देखते नहीं, उनके पास कान है मगर वो उनसे सुनते नहीं। वो जानवरों की तरह है बल्कि उनसे भी ज्यादा गए गुजरे। ये वो लोग हैं जो गफलत में खोए हुए हैं। अल्लाह ताला ने कहा वो जानवरों की तरह है, फिर अपने ही सेंटेंस में और ज्यादा उसको ताकीद के साथ कहने के लिए पहले सिर्फ इतना कहा वो जानवरों की तरह है, फिर इंसान को यहां तक लाए, आपने मान लिया कि हाँ ये बिल्कुल जानवरों की तरह, फिर अल्लाह ताला ने कहा बल्कि उनसे भी ज्यादा गए गुजरे, जानवरों से भी बदतर हैं ये लोग। क्योंकि इनके पास अल्लाह ताला ने इनको दिल दिया है, अक्ल दी है, लेकिन वो उससे सोचते नहीं। इनके पास आंखें हैं लेकिन वो उनसे देखते नहीं, हक को देखते नहीं, कितना वाज़ेह हक है। इनके पास कान है
मगर वो उनसे सुनते नहीं। ये है जानवरों की तरह, बल्कि उनसे भी गए गुजरे। ये वो लोग हैं जो गफलत में खोए गए हैं। सूरह अनफाल आयत नंबर 22 में अल्लाह ताला ने इसको और बताया है कि जो अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते, यकीनन खुदा के नजदीक सबसे बुरे किस्म के जानवर वो यकीनन खुदा के नजदीक सबसे बुरे किस्म के जानवर वो बहरे गूंगे लोग हैं जो अक्ल से काम नहीं लेते। खुद जानवर कहा अल्लाह ताला ने, सबसे बुरे किस्म के जानवर, इंसान को जानवर कह दिया, ये है सबसे बुरे किस्म के जानवर, वो बहरे गूंगे लोग हैं जो अक्ल से काम नहीं लेते, जो अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते। तो कहते हैं ना कि कुछ एथियस्ट आपको मिलेंगे कि हम तो एनिमल हैं, इंसान भी एक एनिमल है। हाँ तो भाई आप एनिमल ही हो। अल्लाह ताला ने आपको जानवरों से ही बदतर कहा है। आप बिल्कुल जानवर हो, मत कहो खुद को इंसान। हाँ वो ठीक है, आप वो एक सेल से बने, हाँ पहले बंदर थे आपके दादा परदादा, और फिर आप गलती से इंसान बन गए, हाँ वही थ्योरी आपके लिए सही है, उससे भी ज्यादा बुरी थ्योरी आपके लिए सही है। हमें अल्लाह ताला ने इंसान बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया, हमें अक्ल दी है, हमें समझ दी है। हम कायनात में गौर व फिक्र करते हैं, हम तफक्कुर करते हैं। हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ये निज़ाम ऐसे ही क्रिएट नहीं कर सकता, इसका कोई मकसद है। ये निज़ाम खुद ब खुद क्रिएट नहीं हो सकता, इसका कोई बनाने वाला है। एक एक निशानी पे हम अक्ल लगाते हैं, हम गौर व फिक्र करते हैं, हम तदब्बुर करते हैं। तो बिल्कुल आप अपने आप को सही कहते हो, आप जानवरों की औलाद हो, आप बंदरों की औलाद हो। मुझे उनसे ये कह दो, मुझे तो लग ही रहा था तू जानवर की औलाद है। सही कह रहा है। कोई आपसे कहे ना कि हम पहले जानवर थे और फिर हम धीरे धीरे इर्तिका करते बने, भाई मुझे बचपन से ही फील हो रहा था तू किसी जानवर की औलाद है। नहीं, हम तो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, हम इंसान की औलाद है। तू तू हाँ बिल्कुल जानवर की औलाद है तू। उसको यही कहो, क्योंकि कुरान में भी अल्लाह ताला ने उनको यही कहा कि जानवर से भी बदतर है। जानवर भी अगर हमने उनको कह दिया तो अच्छा टेक दे दिया, ये उनसे भी बदतर है, उनसे भी बुरा इनका जो दर्जा है। और इंसान जो जहन्नुम में जाएंगे, जब जहन्नुम में दाखिल हो जाएंगे, तो उनसे जब पूछा जाएगा तुम जहन्नुम में क्यों आए, तो पता वो क्या रीजन देंगे अपना? वो क्या रीजन देंगे सोचो। वो ये कहेंगे हम अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते थे। ये बात मैं अपने पेट से नहीं कह रहा। सूर्य मुल्क आप खोलें, सूर्य मुल्क आप जब पढ़ेंगे आयत नंबर 10 पे आप जाएंगे, तो उसमें अल्लाह ताला कहेंगे कि वो कहेंगे, जो जहन्नुमी होंगे वो कहेंगे, काश हम सुनते या समझते तो आज इस भड़कती हुई आग के सजावार में शामिल ना होते। काश हम सुनते और समझते, अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते, तो आज इस भड़कती हुई आग में दाखिल हम नहीं होते, इसमें हम शामिल नहीं होते। तो इन सब आयतों को पढ़ने के बाद कौन इंसान कह सकता है कि इस्लाम में अक्ल का इस्तेमाल नहीं है? इस्लाम में आप अक्ल का इस्तेमाल नहीं लगा सकते। भाई अक्ल का इस्तेमाल लगाना है, अक्ल वालों के लिए नसीहत है। आप देखें हिस्ट्री में, मैं आपको लेके जाऊं कि बड़े से बड़ा फिलोसोफर, बड़े से बड़ा साइंटिस्ट जिसने अपनी अक्ल का सही इस्तेमाल किया है, वो इस्लाम की दौलत से वो नवाजा गया है। डॉक्टर कीथ मूर है, उन्होंने एम्ब्रियोलॉजी के वो फादर, वो वो बोले जाते हैं डॉक्टर कीथ मूर। उन्होंने जब पहली बार डिस्कवरी की है कि माँ के पेट में बच्चा ऐसे ऐसे बनता है, तो मदीना यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट थे उन्होंने जब उनकी डिस्कवरी को पढ़ा और उन्होंने देखा कि ये तो वही प्रोसेस है जो कुरान ने बताया है, तो वो कुरान की आयतों को उनके पास लेगा, डॉक्टर कीथ मूर के पास, कि आपसे पहले ये किसी को पता था? उन्होंने कहा नहीं, इसकी तो डिस्कवरी मैंने की है। ये तो बताया मैंने कि बच्चा तीन परतों के अंदर रहता है, और इतनी ऐसे ऐसे उसकी जो स्टेजेस हैं वो आती है। पहले वो पहले वो फुटकी होता है खून की, फिर वो बड़ा होता है, अलग का बनता है, जोक की तरह का बनता है, लीच टाइप का। उसके बाद उसकी धीरे धीरे स्टेजेस उसकी बनती हैं, और 4 महीने के बाद उसके अंदर रूह फूकी जाती है। तो सब उन्होंने पूरा प्रोसेस डॉक्टर कीथ मूर को समझाया। उन्होंने देखा, कुरान को पढ़ा, और वो तुरंत मतलब बेसाख्ता बोल उठे कि ये किसी इंसानी कलाम नहीं है, ये तो इंसानों को आज मैंने बताया है, ये इंसानी कलाम हो ही नहीं सकता। अक्ल का इस्तेमाल किया उन्होंने, फिर पूरे कुरान का मुताला किया, वो ईमान लेकर आए अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही एक एक आर्किटेक्ट था, उसने उससे उसने कहा कि एक बिल्डिंग भी हम बिना पिलर के खड़ा नहीं कर सकते। क्या कोई है कि हम एक छत खड़ी करें और उसमें कोई पिलर ना लगाएं? है, उसने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया। नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो जब कुरान की उसने वो एक आयत उसके पास, कुरान की एक आयत गई थी सिर्फ, उस आयत पे उसने गौर व फिक्र किया। सिर्फ पूरा कुरान नहीं गया, एक आयत गई, उसने अक्ल लगाई। अल्लाह ताला की कुरान की वो आयत थी
क्या तुम आसमानों को नहीं देखते कि अल्लाह ताला ने कैसे बिना पिलर के इसको खड़ा कर दिया? कोई इसमें मतलब पिलर नहीं है। तो जब उस आर्किटेक्ट पे सिर्फ एक आयत गई, उस क्योंकि वो उस फील्ड का माहिर था, उसने कहा यार ये बड़ी इंजीनियरिंग है, ये बड़ी कारीगरी है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो बिल्कुल ये रब्बुल आलमीन का कलाम है, बिल्कुल ये रब्बुल आलमीन का कलाम है। तो इसलिए अक्ल का इस्तेमाल करना इस्लाम ने ही हमें सिखाया है। और इस्लाम के आने के बाद ही दुनिया ने इतनी साइंस में, टेक्नोलॉजी में तरक्की की है। जो इस साइंस की, टेक्नोलॉजी की जो बुनियाद रखना मुश्किल था ना, हर चीज की नींव रखना मुश्किल है, लेकिन उस इल्म को आगे वो फैलाना बड़ा आसान है। जब मुसलमानों ने कुरान की आयतें पढ़ी, उन्होंने गौर व फिक्र करा, वरना ये यूरोप के लोग, ये जंगलों में झिंगालाला हू करने वाले ये लोग थे, अपने ये वो पाउडर वाउडर लगा के, ये वही भाले उले लेकर ये झिंगालाला हू करते थे, ये जो यूरोप के लोग हैं, ये जो आज ये सिविलाइज दुनिया के लोग बने पड़े हैं, ये वो लोग थे। ये इनको इस्लाम ने बताया, आपको इस्तिंजा ऐसे करना है, आपको आपको पाक साफ रहना है। ये गंदगी में डूबे हुए लोग थे। इस्लाम में जब आए, और बगदाद यूनिवर्सिटी से जो मुसलमानों की पहले दीनी और दुनियावी तालीम अलग अलग नहीं थी, एक ही तालीम थी, वहीं से साइंटिस्ट निकल रहे हैं। आप देखें, मुसलमानों की हिस्ट्री पढ़ें, हर चीज की जो बुनियाद है, जो मैथमेटिक्स की बुनियाद है वो मुसलमान ने रखी, जो साइंस की बुनियाद है वो मुसलमान ने रखी। लेकिन उसको क्या हुआ, बगदाद हमारे हाथों से गया, ततारियों ने हमला करा, मुसलमान रेजा रेजा हो गए, वहां पर हार गए हम उनके सामने। तो फिर क्या हुआ, हमारी बगदाद यूनिवर्सिटी वो खत्म कर दी गई, डिस्ट्रॉय कर दी गई। तो हमारी बगदाद यूनिवर्सिटी में ये यूरोप से लोग इल्म सीखने के लिए आते थे, इल्म का सरचश्मा हम थे मुसलमान, वहां से ये इल्म सीखने आते थे। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही हमारे यहाँ से इल्म खत्म हुआ, ये जो स्टूडेंट वहां से यहाँ आए थे, उन्होंने फिर अपने यहाँ जाके उस रिसर्च को आगे बढ़ाया, और मुसलमान वहां से पस्ती में मतलब चले गए। स्टार्टिंग में तो बड़े साइंटिस्ट क्रिएट हुए, और बाद में मुसलमान ने इस फील्ड को छोड़ा, अक्ल का इस्तेमाल करना छोड़ा, मुसलमान पीछे रह गए। और वो हमारा इल्म लेकर, उसमें जो बुनियाद हमने रखी थी उसकी डिस्कवरी आगे करके, और सब कुछ अपने नाम पे उन्होंने दाखिल करा लिया कि हम ऐसी सिविलाइज दुनिया के बेहतरीन लोग, वो जिंगल अलाऊ करने वाले, जंगलों में रहने वाले, वो सिखाएंगे हमें अक्ल का क्या इस्तेमाल करना है क्या नहीं। वो बताएंगे कि सिविलाइज मतलब वर्ड क्या होता है। तो अपनी हिस्ट्री पढ़ें कि हम क्या थे। तो ये जो दुनिया में इतनी टेक्नोलॉजी आपको दिख रही है, इस्लाम की देन है। ये जो फोन है, ये भी इस्लाम की देन है। इस्लाम ने सिखाया इंसान को गौर फिक्र करे, तदब्बर करे, वरना तो इंसान जाहिलियत में डूबा हुआ था। तो इस्लाम अक्लमंदों का दीन है, मैं आपसे कहता हूँ, अक्लमंदों का दीन है, इंटेलिजेंट लोगों का दीन है। ये बेकार लोगों का दीन नहीं है, ये ब्लाइंड लोगों का दीन नहीं है, ये अंधभक्तों का दीन नहीं है, ये बाशऊर लोगों का दीन है। तो अल्लाह ताला हमें भी कहने सुनने से ज्यादा इन आयतों पे अमल करने की तौफीक अता करे। और कुरान की आयतों को जब हम पढ़ें, तो हमारा भी रवैया ये हो कि हम उन पर सरसरी तौर पर ना गुजर जाएं, उस पर तफक्कुर करें, उस पर तदब्बर करें, एक एक आयत पे चाहे पूरा दिन लग जाए हमें, उस पर डिटेल से हम डिस्कस करें, उस पर मुताला करें, और उसके बेहतरीन पहलू पर हम अमल करें। उसमें जो अल्लाह ताला ने बुराई से रोकने का हुक्म दिया है, तो उस बुराई से हम बच जाएं। अल्लाह ताला ने जो फर्ज चीज हम पे आयद की है, उस फर्ज को हम पूरा करें। जो काम वो करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, उस काम को हम करें। और जिन जिन कामों से अल्लाह ताला ने बचने का हुक्म दिया है, उन कामों से हम बच जाएं। तो यही अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला भी हमें भी इन आयतों पे वैसा ही अ, ईमान और अमल करने की तौफीक अता करे, जैसा कि सहाबा किराम का ईमान था और उनका अमल था। जज़ाकल्लाहु खैरा।